বাড়ি ভেঙে দিলে আমরা কোথায় যাবো? আমাদের জায়গা আছে, টাকা আর আমাদের আমরা কোথায় যাবো বলুন? এটা কি রেলের জায়গা? হ্যাঁ, রেলের জায়গা। নোটিশ দিয়েছিল আপনাকে? হ্যাঁ, দিয়েছিল। আমাদের যদি জায়গা থাকবে তাহলে আমরা যাবো কোথায়? কি করবেন এবার এখন? কি আবার করবো? রাস্তায় থাকতে হবে, উপায় কি আমাদের বলুন? কত বছর ধরে ছিলেন? আমরা ছিলাম 30 বছর। 30 বছর ধরে হ্যাঁ। কে কে রয়েছে বাড়িতে? বাড়িতে আমার মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি, শ্বশুরবাড়ি গিয়েছে, আমার শাশুড়ি আছে, দেওর আছে দুটো। তাহলে এবার কি করবেন ভাবছেন? এবার দেখি। চোখের সামনে বাড়ি ভেঙে যেতে দেখলেন, কষ্ট হচ্ছে? কষ্ট তো হবে, কষ্ট হবে না? এটা নিয়ে আপনাকে কোনো ব্রডকাস্টিং করা উচিত না। আগামী 15 তারিখ 15ই জুন আগামী মন্ডে দুপুর 12টায় আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে আমি প্রেসিডেন্ট হিসাবে এই ক্লাবের মিটিং একটা করব। সেই মিটিংয়ে নিশ্চয়ই আমার, যেহেতু এখনো মিটিং করে এটা ডিক্লেয়ার করা উচিত, তবুও আমি আনঅফিসিয়ালি ওনাকে আমার ভাই হিসাবে বা এই ক্লাবের সর্ব সময়ের আগামী দিনের যে কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ওনার একটা অগ্রণী ভূমিকা থাকবে, সেটা নিয়ে একটা আলোচনা করে নিলাম। আগামী দিনে আরও অনেক কিছু দেখতে পাবেন এই ক্লাবে। আমরা ক্লাবে যখন এসছি, ক্লাবের উন্নতি সাধনে ক্লাবের সমস্ত কিছু, এমনকি আমরা ক্রিকেট যেটা আমাদের অন্য জায়গায় রয়েছে সেটাও আমরা আমাদের ক্লাবের আন্ডারে নিয়ে নেব। যারা এখানে কিছু স্পন্সর করে ক্রিকেট টুর্নামেন্টটা তাদের হাতে রেখেছে, ওটাও আমরা আমাদের ক্লাবের আন্ডারে নিয়ে নেব। আগামী দিনে যে কোনো টুর্নামেন্ট, ডুরান্ট হোক, লিগ হোক, অন্য যে কোনো টুর্নামেন্ট, আমরা কোনো কিছুতে পিছিয়ে থাকবো না। আগামী দিনে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব সম্মানের সহিত বাংলার মানুষের কাছে এই ঐতিহ্য তুলে ধরবে। আচ্ছা, হুমায়ুন সাহেব, আরেকটা কথা, অনেক টাকা দেনা রয়েছে ক্লাবের, খুব স্বাভাবিক। জাস্ট ফিফা ব্যান থেকে এখনও ব্যানের আওতায় রয়েছে আর কি, সেগুলো নিয়ে কি পরিকল্পনা আছে? বললাম তো, এটা আপনাদের কাছে এখন ওপেন ডিসকাস করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ একটা কথা আছে, ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। বা কাজ করার আগে সেটাকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে কোনো ওপেন করতে নেই। কাকে আমি কোন জায়গা দেব সেটা যেমন ওপেন আগে করব না, তেমনি 13,97,00,000 টাকা এই ক্লাবের দায়ভার রয়েছে। এছাড়াও আমার কাছে কাল থেকে অন্ততপক্ষে নাই করে 5 জন ফোন করেছে। কেউ এখন বর্তমানে বাংলাদেশে আছে, তিনি 1992 সালে 28 লক্ষ টাকা তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ধার নিয়েছিল, আজ পর্যন্ত তাকে টাকা দেয়নি। এসব অভিযোগ আমার কাছে এসছে। আমি ধীরে ধীরে এই সমস্ত বিষয়গুলা, ক্লাবের সম্মানের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না। ক্লাবের সম্মান নিয়ে কেউ, ক্লাবের নাম ভাঙিয়ে কেউ মার্কেট করবে, কেউ ক্লাবের প্রেসিডেন্টের নাম নিয়ে কেউ কারো কাছ থেকে মার্কেটে টাকা তুলবে, এসব হুমায়ুন কবির থাকে। इस तरीके के नोटों की करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ फिर देश की तरक्की की बात कर रहे हैं, तो इससे अच्छा होते अगर सीधे तौर पे बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाते। मतलब मैं कहना चाहता हूं, अलग नहीं बल्कि मर्जर होना इनके लिए अच्छा लगते। क्योंकि ये तो खुद ही कह रहे हैं ना कि हम बीजेपी की सरकार को मदद करने के लिए, सरकार की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। अरे तुम तो दूसरे पार्टी के नुमाइंदे थे, अगर मदद करना ही चाहिए थे तो सीधे क्यों ना बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये तो लाजमी है कि उनकी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। अलग अपना पहचान रखने की क्या जरूरत है। अलग रहते हुए बीजेपी पार्टी को समर्थन करने के बावजूद सीधे क्यों ना बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। धर्म तो बचाओ कम से कम। ईमान मतलब खुद को ईमान बचाने की कोशिश करो, सीधे मार्जर हो जाओ बीजेपी पार्टी में। मैं ये सलाह देना चाहते हैं।
लेकिन आपको कैसा लगता है सर कि एक बड़ी पार्टी जिसके अभी मौजूदा सांसद है, क्योंकि कई सांसद कह रहे हैं, मोहम्मद मोइत्रा ने ट्वीट किया यूसुफ पठान को टैग करते हुए कि आपको जो मैंडेट मिला था वो बीजेपी के अगेंस्ट मिला। अरे कुछ नहीं, मैंडेट वो मुझे हराने के लिए वहां तैनात किए गए थे, करोड़ों रुपया खर्चा करते हुए उनको तैनात किए गए थे मुझे हराने के लिए और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए। ये ममता बनर्जी खुद हमारे वहां जाके इस शख्स को अपना उम्मीदवार बनाते हुए ये प्रचार में ये कहने लगे कि इस बार मुसलमान को वोट दो, इस बार भाई को वोट दो, भाईजान को वोट दो। इतने सालों से तुम दादा को वोट दे रहे हैं, दादा मतलब मैं हूं, दादा मतलब हिंदू है, इतने सालों से तुम हिंदू को वोट देते आ रहे हो, इस बार भाईजान को दिया करो, मतलब उनके उम्मीदवारों को दिया करो। तो किसका मैंडेट था ये? वो तो ये भेजा गए थे मुझे हराने के लिए। मैं जिस दिन से हार गई, मकसद खत्म ममता बनर्जी की। तो जिस लोगों को, जिस व्यक्ति को, जिस शख्स को उन्होंने सिर्फ एक हराने के लिए वहां तैनात किए थे, वो अपने मर्जी पे चले। आपके बात क्यों सुनेंगे? आपका काम तो हासिल हो चुके हैं, मैं तो हार ही गए हैं, और क्या चाहिए? आपने खुद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किए थे मुझे हराने के लिए। ममता बनर्जी के आदेश पे खुद वहां दंगा फैले गए थे उस समय, और उनकी पार्टी के दूसरे नुमाइंदे खुलेआम वो शिकारा भी है। तो उनका भी ज्ञान दे रहे हो आप लोग। मैंडेट, अरे आपके पार्टी के दूसरे लोगों की मैंडेट क्या ये था? भतीजे के खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप? जुबान नहीं निकालते? आज ममता बनर्जी और भतीजे दोनों के चलते बंगाल में ये तृणमूल पार्टी के हाहाकार मच चुके हैं। ये कहने में शर्म लगती है आप लोगों को। लेकिन सर कैसे देखते हैं आप राजनीति का रुख? आप बंगाल की राजनीति कैसे देखते हैं? विपक्ष तो कहीं ना कहीं वहां दिखाई नहीं देता, लोकसभा की बात करें तो। और आज जो ये इस तरीके से ये बात कर रहे हैं, आगे आने वाले किसी भी वक्त के अंदर नंबर्स की जरूरत पड़ती है बीजेपी के लिए, इंडायरेक्टली नंबर्स खुल गए। और वजह क्या मानते हैं आप इन सब चीजों की, और असर कैसे देखते हैं राजनीति का? ये राजनीति में टीएमसी पार्टी को मैंने शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल कंपनी है, पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, पॉलिटिकल कंपनी है। तो पॉलिटिकल कंपनी की शेयर में अभी घाटा चल रहे हैं। तो जिन लोगों ने पॉलिटिकल कंपनी में इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टर भाग रहे हैं, और क्या? क्योंकि वहां नाफा नहीं है। ये तो पॉलिटिकल कंपनी है, शेयर बेचे गए थे, नाफा हो रहे थे, अभी नाफा होने की संभावना नहीं है, फिर चलो शेयर उठा लो, इन्वेस्टर भाग रहे हैं, यही तो है, और क्या? अरे सारे देश में विपक्ष की जो जिम्मेवारी और राहुल गांधी की अगुवाई में बाकी सारे लाइक माइंडेड जो है सबसे एकजुट होकर करेंगे। राहुल गांधी तो कर ही रहे हैं। अगर शुरू से राहुल गांधी की ये सारे तवज्जो देते थे, आज जो दे रहे हैं, तो नतीजा अलग होते थे, यही मैं जरूर कहूंगा। सर आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, अब कांग्रेस के लिए क्या आगे रहा?